उसदे चंचल नैन कटार और चंचल नैन कटार ते उसदा रूप बना हथियार उसके रूप से कत्ल हुए तो चर्चा शुरू हुआ नगाड़ा 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 बजा नगाड़ा 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 बजा Hi, this is Imtiaz Ali. Watch me on Yo India TV. नगाड़ा 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 बजा। जी हाँ, नगाड़ा बजाने का समय इस समय यूएसए में आ गया है क्योंकि इम्तियाज़ अली पधारे हुए हैं यूएसए में। ही इज़ एट अ ग्रेट साला फिल्म फेस्टिवल, साउथ एशियन लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल 2024 at Stanford. Welcome Imtiaz to Yo India TV. Thank you. It's a really great occasion to be seeing you, meeting you in person. How's your feel in the Bay Area? I've been to the Bay Area a long time back to shoot Love Aajkal many years back with Saif and yeah, but Deepika wasn't here, only Saif was shooting over here. So Bay Area also has a lot of my friends because they are all techies and so I sometimes come in between and this area is very I feel very pretty, very beautiful. I often take the drive from the Highway 1 drive from LA to SF and that's very interesting as well and very beautiful. So very happy to be here. It's sunny and it's chill at night and very happy to be here actually. And yesterday there was the grand reception of the Sala Festival at Stanford University and I met some very incredible people. I think I'm very excited to be here. As you can see, I'm talking so much. ये दूरियां ये दूरियां ये दूरियां इन राहों की दूरियां निगाहों की दूरियां हम राहों की दूरियां फना हो सभी दूरियां। एंड लव आजकल आपने जिक्र किया, बहुत ही स्पेशल मूवी. वी ऑल लव्ड सैफ एंड दीपिका's performance and I have seen in all your movies and I would say all of them are very cult movies. They stand out in terms of the dialogue, they stand out in terms of the screenplay and you know the storyline is very special, very close to our hearts. आपके फ्रेंड्स जो कॉलेजेट्स हैं जो यहाँ यूएस में हैं, आई एम श्योर वो कुछ ऐसी स्टोरीज़ हैं जो कॉलेज में जो आजकल लोग पढ़ रहे हैं, दे कैन रिलेट टू इट वेरी वेल. तो क्या कहना चाहेंगे, हाउ डू यू चूज़ द स्टोरी लाइन एंड हाउ डू यू एज अ डायरेक्टर bring it to the play? I choose the stories based on things that might have happened in my life, people that I might have met, but I kind of take off from there in the way that I imagine what might have happened beyond what I have already experienced. यानी कि अगर मैंने कभी मान लीजिए ट्रेन में एक लड़की को देखा और मुझे लगा कि ये लड़की कहाँ जा रही है और इसकी ट्रेन तो नहीं मिस हो जाएगी, नहीं मिस हुई, वो चली गई अपने घर, बट वो चीज़ मेरे दिमाग में रह जाती है, फिर वो अपने आप ही एक कहानी बन जाती है एंड देन फाइनली यू राइट ऑन इट एंड दैट्स व्हाट बिकम्स जब वी मेट. सो दिस इज द प्रोसेस. तरसाती हैं दूरियां फना हो सभी दूरियां. बहुत ही रोमांटिक मूवीज़, एक डेप्थ जो होती है ना इमोशंस की कि एक लड़की क्या फील कर रही है, उसको भी आपने बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट किया. इवन टिल टुडे I was just speaking to some students from the San Francisco State University and they were like, wow, Jab We Met is just so awesome. And you want to talk about anything regarding the direction in particular, because that's what you really do. जी, आई थिंक इंसान जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, और जब इंसान फिल्म देखते हैं तो वो फिल्म में भी लोगों को ही देखते हैं, इंसानों को ही देखते हैं. सो देयर इज़ अ सर्टेन रिलेटेबिलिटी
एंड आई फील दैट जब हम फिल्म बनाते हैं, चाहे हम लिख रहे हों या डायरेक्ट कर रहे हों या कोई भी काम कर रहे हों, तो भी हम एक इंसानी जज्बे से, एक इंसानी इमोशन को सेलिब्रेट करते हुए, उसको लिखते हुए, उसको डायरेक्ट करते हुए ही पाते हैं अपने आप को. सो बेसिकली देयर इज़ दिस ह्यूमनिज्म that goes on in filmmaking and trying to understand them, and more than understand, empathize with them, feel what they are feeling, and I think overall cinema is a very human experience. पूछो ना पूछो मुझे क्या मिलेगा तेरी बाहों में आकर, ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए, हाँ ओ रामा ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए, हाँ. And जब वी मेट को बेस्ट डायलॉग अवार्ड भी मिला है, you know, both from Filmfare and IFA. So any words on that? Yeah, Jab We Met, I feel, I used to feel that I don't know how to write dialogue. My Hindi is not good, and that is what like people like Renu Agarwal and Jasbir Ubhi, who were my school teachers, used to say. But मैंने सोचा था कोई और डायलॉग लिख देगा, मगर वक्त नहीं हो था उस वक्त, तो मैंने लिखा था. एंड इट टर्न्ड आउट टू बी दैट वो इतने बोलचाल की ज़बान थी, क्योंकि मुझे आती ही वो थी, तो लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और लोग एकदम उस तरह से बोलने लगे, बिकॉज एक्चुअली दैट्स हाउ पीपल टॉक. सो या द डायलॉग ऑफ जब वी मेट एंड ऑल्सो माई अदर फिल्म्स हैज़ बिन like spoken about, but that's because this is how everybody talks, and that's how I just write it in. क्या बात है, और बिल्कुल कनेक्ट हो जाता है उसी से, क्योंकि आप जो बोल रहे हो, और एग्जैक्टली यू नो इट्स नॉट लाइक वी स्पीक समथिंग एल्स व्हेन वी आर इन अ फॉर्मल मीटिंग और समथिंग वर्सेस व्हाट वी स्पीक इन डे टू डे लाइफ, यू नो इट माइट बी डिफरेंट, एंड दैट्स व्हाट यू ब्रिंग इट आउट. ब्यूटीफुल. अकेली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है. हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है? आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है? नहीं, ये तो मुफ्त है. गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास. So any memories related to Cocktail? Cocktail is a movie that I didn't direct. I wrote the screenplay for Cocktail, and I wanted to direct it before, but after Jab We Met, I thought that maybe I should direct some other kind of film, and that's how Homi directed it. So my memories with Cocktail are more to do with writing and talking to actors, explaining to them what the role is, what the scenes are, talking to the director and the producer Dinu. It's a very good experience, very fun experience, very spirited team. रोनिका, तुम्हारी पैंट? घर में कभी मुझे पैंट पहने देखा है? पर ये And I see like you have worked with this new power couple, you know, Ranbir and Alia. You know, Highway में आलिया ने बहुत ही अच्छा काम किया, और आपकी ऑलरेडी कुछ टेली सीरीज़ चल रही थी रिश्ते, जिससे आपने ये फिल्म बनाई. तो टेल अस अ लिटिल मोर हिस्ट्री ऑफ हाउ यू थॉट अबाउट मेकिंग दिस मूवी. Highway is a short film that I had made for Rishte, as you said, for TV, for ZTV that back in the day. बट वो करते हुए मुझे लगा कि क्योंकि ड्यूरेशन बहुत कम थी, सिर्फ 45 मिनट या 38 मिनट्स में मुझे बनानी थी, तो आई कुड नॉट डू जस्टिस टू द स्टोरी. आई फेल्ट दैट देयर इज़ मोर दैट द स्टोरी हैज़ टू से, बट मैं कर नहीं पाया, उसको बना नहीं पाया, तो वो एक कसक रह गई थी. बाद में जब मैंने मूवीज़ डायरेक्ट करना शुरू किया, तो मैंने सोचा कि मैं हाईवे बनाऊंगा, मगर फिर पहले मैंने जब भी मैं सोचा ना था बना ली, फिर सोचा कि हाईवे बनाऊंगा, फिर सोचा कि चलो जब भी मैं बना लेते हैं, फिर बनाएंगे हाईवे, फिर लव आजकल बन गई, फिर रॉकस्टार बनी, और करते करते फाइनली हाईवे वाज द फर्स्ट मूवी दैट आई वांटेड टू मेक, एंड आई फाइनली मेड इट. आई एम ग्लैड आई डिडंट मेक इट एट दैट टाइम, बिकॉज उस तरह से फॉर्म्ड नहीं थी मेरे दिमाग में जैसे बाद में वो हुई. तो फिर तब मैंने जाके हाईवे बनाई थी. एंड इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म फॉर अस, बिकॉज
एक तो उसमें जो what it's talking about is something that is very gruesome, and it is the cruelty that Indian society or societies everywhere in the world chooses to tolerate. And so it's about that. So I feel एक तो वो वजह है. दूसरी ये कि हम लोगों ने ना just like a band of brothers and sisters, we roamed around on the highways of India and shot that film, almost like a circus caravan. So it really united us, and we also got to see a lot of our country making highway. That I feel was the most important part of making highway, to have gotten to see the country in that way. पटाखा टूटियो नशे में उड़ जाए रे हाय सच्चे खब्बे तब्बे किलियो पटाखा टूटियो नशे में उड़ जाए रे हाय सच्चे खब्बे तब्बे किलियो बोला तेरा मालियो हरियाली जंगल वाली कूदे घर गाली पे ताली उसकी कदम कदम रखवाली है वे लोग लाज की सोच सोच के क्यों है आफत डाली भूले नाम रब का नाम साईं का अली 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 नाम रब का नाम साईं का अली 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 तो दैट वाज मोस्टली शॉट इन इंडिया. उसके जितने हाईवे के जो सीन्स थे, जो आपने माउंटेन्स एंड जंगल्स जो भी आपने दिखाए उसमें, लेकिन आई सॉ लाइक टूरिज्म अब्रॉड हैज़ ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड यू, स्पेशली फॉर जब हैरी मेट सेजल. सो टेल अस अ लिटिल मोर अबाउट दैट. एक्चुअली मैंने मेरी फिल्म्स बहुत आउटडोर भी रही हैं. रॉकस्टार में हमने शूट किया था प्राग में, लव आजकल में हमने शूट किया था सैन फ्रांसिस्को में और इंग्लैंड में, लंदन में. फिर हैरी मेट सेजल में ऑफ कोर्स वी शॉट इन 4 different countries in Europe. So and फिर then in तमाशा we shot in Japan and in Corsica which is in France. So बहुत मैंने बाहर शूट किया हुआ था. तो उन लोगों को जो फिल्म इंडस्ट्रीज़, जो फिल्म नेशंस हैं, जो लोकेशंस हैं, उन लोगों को लगा कि आई एम द राइट पोस्टर बॉय फॉर इंडियन फिल्म्स टू बी शॉट अब्रॉड. सो जब भी उनके सेमिनार्स होते हैं तो वो लोग ज़रूर मुझे इनवाइट करते हैं, और इट्स अ गुड थिंग फॉर मी टू ऑल्सो मीट डिफरेंट पीपल फ्रॉम फिल्म कम्युनिटीज़ अब्रॉड. तुझको खबर ना तुझको पता. तो पहले आप पूरा टूर करते हैं एंड यू जस्ट थिंक कि ये सीन इस लोकेशन में ठीक रहेगा. जी, पहले ऑब्वियसली उस कंट्री का एक आइडिया होता है मुझे, तभी मैं उसके बारे में लिख भी सकता हूँ. तो अभी पर्सनल टूरिज्म के लिए या किसी काम की वजह से जब मैं किसी कंट्री को विज़िट करता हूँ तो फिर उसमें कुछ कहानियाँ दिमाग में बनती हैं. देन आई गो बैक एंड शूट देयर. इट्स लाइक दैट. तो सोचा ना था, आई थिंक इट वाज योर वन ऑफ द डेब्यू मूवीज है ना, एंड इट वाज विद अभय देओल एंड आयशा टाकिया. या तो कैसे आप स्टार कास्ट कैसे चूज करते हैं? एक्चुअली उसमें क्या था कि आई वांटेड अ न्यू गाय एंड न्यू गर्ल बिकॉज दे वर वेरी यंग एंड आई वांटेड देम टू बी वेरी यंग, अनमैरिड, अ लिटिल immature even, you know, as the character of that Abhay played, which is Viren, was very like immature, not very thought out, like a guy who doesn't think too much. So उस वजह से I was looking for young people, younger and hopefully actors that had not acted before.
because there'd be a freshness. So इस तरह से हमने कास्ट किया. क्या समझ गया. क्या समझ गए? जो तुमने कहा नहीं. जब मैंने कुछ कहा नहीं, तुम समझे कैसे? यही तो चक्कर है. जो तुम कहती नहीं हो ना, वो भी मैं समझ जाता हूँ. हमारे बीच कुछ है ना? कभी दिल के करीब तुम्हें मेरे नसीब यूं लाएंगे सोचा न था. तुम मुझे पसंद करते हो. तो रॉकस्टार में मैंने देखा रणबीर कपूर ने ऑब्वियसली ही वाज अ ग्रेट एक्टर एंड द वे वो आपने जिस तरीके से उसका डायरेक्शन किया है, वो जहाँ जहाँ बैठता था, उसके जो स्पॉट्स थे व्हेन ही वाज इन मेलंकली वर्सेस व्हेन ही वाज एक्चुअली एक्टिंग एज अ रॉकस्टार एंड ही वाज इन अ हैप्पी मूड, तो बहुत ही थॉटफुली चोजन थे, वेरी अप्रोप्रिएट टू द ओकेजन. बट उस मूवी में मैंने देखा जो बिहाइंड द सीन इमोशन है कि एक रॉकस्टार के पीछे क्या स्टोरी चल रही है. यूजुअली यू नो अप टिल नाउ, आई मीन वेरी रिसेंटली आई हैव सीन के बिहाइंड द सीन पे उतना ही फोकस हो गया है. इवन सोशल मीडिया में जब से ये स्मार्टफोन्स आए हैं तो लोग बैक स्क्रीन पे क्या हो रहा है, रिहर्सल्स कैसे चल रही हैं, उन चीज़ों पे भी काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं और उनको वायरल करने की कोशिश करते हैं, इवन टू प्रमोट देयर ओन शोज़. तो रॉकस्टार में जो पीछे वो कैसे कर रहा था, उसको वैसा लिखने के लिए, वैसे इमोशन लाने के लिए क्या करना पड़ा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी. एंड आई थिंक इट वाज अ लिटिल अहेड ऑफ टाइम. जब आपने वो मूवी बनाई तो उस तरीके का थॉट प्रोसेस इतना था नहीं, तो थोड़ा बताएं कि कैसे हुआ. रॉकस्टार में बहुत मज़ा आया. आई थिंक इट वाज द मोस्ट यूनाइटेड क्रू. एंड देखिए बैक स्टेज का जो है ना, वो बैक स्टेज इज़ फॉर पीपल दैट मेक द फिल्म रियली. उसको हम अलग से शूट करें और ठीक है, मतलब इट्स ऑल राइट, पीपल आर इंटरेस्टेड एंड इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू see how something is made, etc. But that's not the main thing. The main focus has to be on the film. And I think a lot of people that watch backstage or behind the scenes stuff should also watch the films. I think basically the craze or the interest for the film is what creates the interest in the backstage. I don't want to do stuff behind in the making of the film so that it can be viral. You know what I mean? Like I don't want, because you don't need to. No, not that. No, it's not that. I don't want that process to be artificial. That process should be real. हम लोग सब काम करते हैं, काम के पीछे जो होता है उसको हम ज़्यादा शोकेस अगर करने लगेंगे तो हमारा तवज्जो, जैसे कि आपने कहा, वो काम से हट करके इन चीज़ों में चला जाएगा ना. तो आप पहले तो मेन डिश बनाएं जो कि फिल्म है, उस पर ध्यान दें. और बैक स्टोरीज अगर कुछ होती हैं तो अपने आप होती हैं. वन शुडंट ट्राई टू फैब्रिकेट देम. मिट्टी जैसे सपने ये किताबी पलकों से झाड़ो फिर आ जाते हैं. इतने सारे सपने क्या कहूँ, किस तरह से मैंने तोड़े हैं, छोड़े हैं. क्यों मेरे साथ चले मुझे लेके उड़े ये क्यों. So Imtiaz ji, we have always seen that the star cast in your movies is really superb. You know, you choose very talented people. In your recent movie, Chamkila, you know, where you depicted that Punjabi artist Amar Singh Chamkila, you chose Pariniti Chopra and Diljit Dosanjh, and Diljit is, you know, on the topmost list in not just Punjabi cinema, but also he has made a mark in Bollywood. So how did you get to choose these people and how was the experience working with them? I wanted singers to act in this because in this movie we have used live singing, live recording of singing. So what you hear them sing is what you have actually recorded on the set. So I wanted singers. तो singers की जब list होती है, actor और singer दोनों होना चाहिए, the list becomes very small. And Diljit was on top of it.
and Pariniti was on top of it. Luckily, both of them agreed. Also, I wanted especially the actor who plays Chamkila's part to be from rural Punjab, or at least understand the sensibility, the dialect of rural Punjab. Diljit was just the man for us. And Pariniti is also Punjabi and Punjabi speaking, and so she is a singer. She's a trained singer. So all things came through, and it just became the best casting for me. इश्क मिटाए हाय हाय निमाए मेरा इश्क बनाए हाय हाय इश्क मिटाए हाय हाय निमाए मेरा इश्क बनाए हाय हाय जो होना हो जीवे अग मेरी सारा जल मेरा जीवे जीवे अग मेरी सारा जल मेरा जीवे इश्क मिटाए हाय हाय निमाही मेरा इश्क मिटाए हाय हाय मोड़ गया पाई पाई निमाही मेरा मोड़ गया पाई पाई मैं हूँ पंजाब. So to all the youngsters who are inspired by the great Imtiaz Ali, you know, we are so in awe to see your cult movies and so looking forward to see many more going forward, you know. What's your message and tips into cinematography, direction and the film line, you know, those who are trying to build their careers and particularly those who are here in US? I feel that many things that one does to progress in film work is instinctive, unplanned, almost without a reason, and very innate. You feel like writing, you feel like thinking about something, you feel like telling somebody something, you do it on your own first. You know, you sit and write. You want to take a picture, your photograph for your own self. First, do it for yourself. Don't start selling before creating. Take your time. Speak to yourself. Spend that time alone. Don't be in a hurry. आधा कच्चा आधा पक्का काम मत दिखाना. मतलब पूरी तरह से करो, अच्छे से करो, अकेले करो. वक्त लगता है, तब तुमको समझ में आएगा whether you are even interested in it or not. कोई अच्छी चीज़ जब बन जाए, तब उसको फिर बेचने की कोशिश करो, दूसरे लोगों के पास जाओ, जॉब लेने की कोशिश करो. Don't first just get a camera and say I want to be a filmmaker and please hire me. Talk to yourself. Don't lose contact with your own self if you want to be on the creative journey. Wonderful, great message, and thank you for your time in speaking with Your India TV. Pleasure was all of us. Thank you.